بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہمارے ساتھ اردو کے معروف ناول نگار محمد حفیظ خان صاحب موجود ہیں، اور آج ہم سب یہاں ان کا انٹرویو لینے کے لیے، ان سے کچھ سوالات کرنے کے لیے جمع ہوئے ہیں۔ محمد حفیظ خان صاحب مشہور قانون دان ہیں، لیکن اردو ادب میں ان کی نمائندہ یا نمایاں حیثیت ان کے اردو ناولوں اور افسانوں کی وجہ سے ہے۔ آپ نے تقریباً 35 سال سے آپ جو ہے وہ قانون کی خدمات انجام دے رہے ہیں، طویل عرصے سے بیوروکریسی کا حصہ ہیں، اور 2011 میں آپ نے تمغہ امتیاز بھی حاصل کیا۔ محمد حفیظ خان نے بے شمار ایوارڈز حاصل کیے اکادمی ادبیات پاکستان سے، پی ٹی وی سے اور پاکستان کے بے شمار نامور اداروں سے۔ آپ کا ایک پہلو یہ بھی ہے کہ آپ بحیثیت استاد قانون کی تدریس سے وابستہ رہے اور مرکزی مضمون کی حیثیت سے ہمیشہ قانون پڑھایا۔ آپ کی بے شمار تصانیف منظر عام پر آ چکی ہیں، جن میں اتفاق سے نفاق، معاصر ملتان، ملتان نصف جہان، شعری مجموعہ پہلی شب تیرے جانے کے بعد، نوآبادیاتی خطوں کا نیا مکالمہ، خرم بہاولپوری شامل ہیں۔ اردو افسانوں کے مجموعے میں یہ جو عورت ہے، حفیظ خان کی کہانیاں، تن من سیز سریر کے نام، تن من سیز سریر شامل ہیں۔ ناول ادھورے لوگ، کڑکنات اور انواسی اردو میں منظر عام پر آئے اور بے انتہا مقبول ہوئے۔ ہمارے آج کے انٹرویو پینل میں شعبہ اردو کے کچھ ریسرچ اسکالرز شامل ہیں، جن میں ہمارے پہلے ریسرچ اسکالر ہیں ظہیر عباس، جو شعبہ اردو جامعہ کراچی کے ایم فل کے ریسرچ اسکالر ہیں، حلقہ ارباب ذوق کراچی سے وابستہ ہیں اور کراچی کے معروف نجی تعلیمی ادارے میں تدریسی فرائض انجام دے رہے ہیں، شاعر ہیں اور مترجم بھی ہیں۔ ہمارے اس انٹرویو پینل کے دوسرے رکن ہیں اعجاز احمد، شعبہ اردو جامعہ کراچی کے پی ایچ ڈی کے ریسرچ اسکالر ہیں، ایم فل کا مقالہ سندھ میں اردو خاکہ نگاری پر مکمل کیا، گورنمنٹ کالج میں لیکچرار ہیں۔ ان کو تنقیدی اور تحقیقی مضامین لکھنے کا شوق ہے اور اردو ادب سے وابستہ شخصیات سے ملنے کا ذوق بھی رکھتے ہیں۔ ہماری انٹرویو پینل کی تیسری رکن ہیرا شبیر ہیں، جو شعبہ اردو جامعہ کراچی میں پی ایچ ڈی ریسرچ اسکالر ہیں، ہیڈ مسٹریس جامعہ ملیہ گورنمنٹ وائس اسکول ملیر ہیں۔ مضامین لکھنا، انٹرویو کرنا اور کتابوں پر تبصرے کرنا ہیرا کا مشغلہ ہے۔ اب ہم اپنے پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں اور ہم درخواست کرتے ہیں محمد حفیظ خان صاحب سے کہ وہ اپنا تعارف کروائیں، اپنے خاندانی پس منظر کے حوالے سے، اپنے تعلیمی پس منظر کے حوالے سے اور آپ کے جتنے دیگر حوالے ہیں اس کے حوالے سے آپ اپنا ایک تعارف کروائیں تاکہ ہم آپ کی شخصیت کی بابت جان سکیں۔ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحبہ۔ تعارف تو میرا کم و بیش آپ کرا چکی ہیں، لیکن اگر آپ کا حکم ہے تو اس میں مزید اترتا ہوں کہ 3 اکتوبر 1956 کو میں پیدا ہوا۔ بہاولپور جو سابقہ ریاست تھی، اس کا ایک شہر ہے، اس کی سب سے بڑی تحصیل احمد پور شرقیہ، وہاں میں پیدا ہوا۔ میرے والد صاحب سول سروس میں تھے، لیکن اس سے پہلے انہوں نے نواب صاحب کی آرمی کو جوائن کیا ہوا تھا، لیکن تھوڑی دیر کے لیے۔ پھر وہاں سے وہ بیوروکریسی کی طرف آ گئے، سول سروس کی طرف آ گئے پاکستان بننے کے بعد۔ تو بھائیوں میں سب سے بڑا ہوں، 2 چھوٹے میرے بھائی ہیں، میری 3 بہنیں ہیں، 1 بہن مجھ سے بڑی ہیں، 2 بہنیں مجھ سے چھوٹی ہیں۔ یہ تو میرا ایک ہو گیا حوالہ۔ دوسرا یہ ہے کہ میں نے گریجویشن کیا ہوا ہے بی ایس سی میڈیکل زولوجی باٹنی کیمسٹری کے ساتھ، اور ایل ایل ایم کیا ہوا ہے لام کے، اور اس کے ساتھ میرا ماسٹرز ہے ہسٹری میں، تاریخ میں۔ یہ تو تعلیمی تھا۔ میں نے جو اپنی آغاز کیا عملی زندگی کا، وہ میں نے کیا وکالت سے 2 جنوری 1980 سے، لیکن وہ تھوڑے عرصے رہا
क्योंकि उससे पहले मैं रेडियो से वाबस्ता था, रेडियो बावलपुर से और रेडियो मुल्तान से। मैं वहाँ ड्रामा लिखा करता था, कंपेयर था, अनाउंसमेंट्स किया करता था और ड्रामा वॉइस भी था। वहाँ मैं उर्दू और सराइकी दोनों ड्रामे लिखा करता था। तो लेकिन जो बाकायदा मेरा प्रोफेशनल आप कहें कि एंट्री थी, वो वकालत की थी, लेकिन वो 9-10 महीने के लिए थी। दिसंबर 1980 में मैं रेडियो पाकिस्तान के प्रोड्यूसर के लिए जॉब्स ऑफर हुई। उसका एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम था, तो मैं वहाँ रेडियो प्रोड्यूसर हो गया। तो फरवरी 1981 में मैं इस्लामाबाद ट्रेनिंग प्रोड्यूसर के तौर पर आ गया। यहाँ कुछ 6 महीने मेरी ट्रेनिंग रही। उसके बाद मेरी ऑप्शन पे मुझे मुल्तान भेज दिया गया। चूंकि मैंने यहाँ टॉप किया था ट्रेनिंग में, तो वहां पर रेडियो में मैं रहा तकरीबन कोई 1.5 साल। वहां मैंने रहते हुए बल्कि वहाँ रेडियो में जाने से पहले ही मैं एक इम्तिहान दिया हुआ था मैंने, सिविल जज का, जिसे PCS जुडिशियल कहा जाता था, प्रोविंशियल सिविल सर्विस में। उसका रिजल्ट आया तो मैं सिविल जज हो गया और यूं 17 जुलाई 1982 को मैं बतौर सिविल जज पंजाब का एक आखिरी जिला है सिंध की सरहद पर, रहीम यार खान, मेरी वहां पोस्टिंग हुई। मैंने जिस तरीके से जुडिशरी के बारे में सुना था, लेकिन जब प्रैक्टिकली मैं वहां पर पहुंचा तो मैं अपने जो सीनियर्स थे या लोग थे वापस, उनके रवैयों से बहुत शुरू करना चाहिए। लेकिन चूंकि इत्तेफाक से LLB में मैंने टॉप किया हुआ था ज़करिया यूनिवर्सिटी मुल्तान में और फर्स्ट क्लास थी, तो बहावलपुर यूनिवर्सिटी, जो इस्लामिया यूनिवर्सिटी बहावलपुर में, वहाँ लॉ डिपार्टमेंट में एक सीट खाली थी और वो अहम जो किताब वो थे उसके मज़ामीन, उनको पढ़ाने के लिए मुझे बुला लिया गया और मेरा एक छोटा सा चाय पर इंटरव्यू हुआ। उस वक्त के जो VC थे डॉक्टर रफीक, और मैं यूं वहाँ लेक्चरार हो गया। मुझे PhD के लिए भेजा जा रहा था, लेकिन इस दौरान मैं ये CSS का एग्जाम दे चुका था और PCS एग्जेक्टिव का दे चुका था। तो पहले रिजल्ट मेरा आया PCS एग्जेक्टिव का, तो मैंने 9-10 महीने की नौकरी के बाद लेक्चररशिप को भी छोड़ा और लाहौर आकर मैं एक्साइज एंड टैक्सेशन ऑफिसर लग गया। तो यहाँ पर कोई 5-6 महीने में रहा, बल्कि 6-7 महीने। मेरा मीनवाइल ट्रांसफर रावलपिंडी को हो गया था। तो एग्जेक्टिव में रहते हुए मुझे जुडिशरी बहुत याद आई। मैंने वहां देखा था कि जुडिशरी में अगर कोई जज करप्ट होता है तो वो उसका इनफरादी फेल है। वहां उसे सिस्टम करप्ट नहीं करता, कि ना उससे वो कहीं ऊपर वालों को देता है ना नीचे वालों से लेता है। लेकिन एग्जेक्टिव में बहुत बुरा हाल था उस वक्त। जैसे एक करप्शन की चेन होती है ना, पूरे डिपार्टमेंट में वो बनी हुई थी, और अगर वहां कोई उसमें शामिल नहीं होता तो सिस्टम उसे निकाल बाहर फेंकता था। यूं इस दौरान इसी घूमो में मेरा CSS का रिजल्ट आ गया, तो 12th कॉमन में मुझे ऑडिट एंड अकाउंट्स की जॉब ऑफर हो गई। वो मैंने ज्वाइन करने के कुछ 2-4 दिन के बाद ही छोड़ दी, क्योंकि मेरा सिविल जज का मैंने दोबारा इम्तिहान दिया था। और यूं फिर 5 फरवरी 1985 को मैं दोबारा सिविल जज बनकर उस टीम में शामिल हो गया। तो इस दौरान बहुत सारी मैंने पोस्टिंग्स एंजॉय की। सिविल जज से सेशन जज तक का सफर था। इस दौरान मैं पंजाब गवर्नमेंट में एडिशनल सेक्रेटरी लॉ भी रहा। फिर मेरी रिटायरमेंट से 2 साल पहले पंजाब सर्विस ट्रिब्यूनल, जहां पर मुलाजमीन के सर्विस मैटर्स की अपीलें होती हैं, उसका मैं पहले मेंबर रहा, फिर चेयरमैन रहा। तो इसके अलावा मैं लाहौर हाई कोर्ट जो है उसमें एस्टेब्लिशमेंट का सरबराह भी रहा, वहां पर IT और लाइब्रेरीज का सरबराह भी रहा। लेकिन ये जो मेरा इस वक्त जिस वजह से इंटरव्यू हो रहा है, वो है मेरा अदब से ताल्लुक। मैं छोटा सा था जब 1965 की वार हुई, तो एक बड़ा जज्बा था, एक जुनून सा था जब मैं सुनता था रेडियो पर तराने। तो उस वक्त मैं गालबन 4th जमात में पढ़ता था। तो मैंने छोटी छोटी नज़में लिखनी शुरू की और हमारे घर में अखबार आता था जंग कराची
اور ہماری دوسری سسٹر جو تھی उनका घर अलहदा था, तो वहां आता था हुर्रियत कराची. तो उनके बच्चों के सफ़ों पर मेरी वो छोटी नज़में जब शाये हुई, तो वो मेरा नुक्ता आगाज था. मिली नज़में थी. उसके बाद हमारे घर में चूंकि मेरे वालिद साहब को बहुत शौक था किताबें पढ़ने का और किताबें जमा करने का, उनके जो दो फेवरेट मौज़ूआत थे वो था मजहब और तारीख. और मेरे नाना, उनकी बिनाई चली गई थी जब मैं 7वीं जमात में था, तो वो मुझसे जो तारीख इस्लाम की किताबें हैं वो मुझसे सुना करते थे, मैं उन्हें पढ़ के सुनाता. ये वो पीरियड था कि जब मुझे खुद समझ नहीं होती थी कि जो अल्फाज मैं पढ़ रहा हूं उनके मानी क्या है. लेकिन जब मैं अपने नाना के चेहरे को देखता कि कभी उनका चेहरा मुतगय्यर हो रहा है, कभी वो बिल्कुल जैसे रोने वाले हो जाते थे, कभी उनकी आंखों से आंसू से गुशे भीग जाते, आंसू निकलते, कभी वो मुस्कुरा देते, तो मुझे अल्फाज की जादूगरी का एहसास उस वक्त हुआ कि ये इन अल्फाज में कौन सा जादू होता है कि जो लफ्ज मैं बोलता हूं वो मेरे नाना के चेहरे को उसी तरह बदल देता है. यूं मेरा जो इश्क था, मैंने उन दिनों तारीख तिबरी भी पढ़ ली और दूसरे जो किताबें थी हमारे, जैसे आप कहें इब्न हिशाम को वगैरह वगैरह, इब्न खुल्दून का जो सारा, ये उन दिनों की बातें हैं. फिर जब मैं आया मैट्रिक में, तो उन दिनों मैंने बाकायदगी से मैंने पहली कहानी लिखी थी, पहला अफसाना. तो लेकिन इसको जो एक शक्ल मिली कंक्रीट, जब मैं फर्स्ट ईयर में आया 1971 में, तो हमारे एक उस्ताद थे उर्दू के, अल्लाह उन्हें गनी की रहमत करे, प्रोफेसर सोहेल अख्तर, ये बहावलपुर कॉलेज में होते थे. तो वो बैतबाजी का मुकाबला करवाया करते थे. तो उन्होंने 2 विंग बनाए क्लास के, एक का सरबरा मैं था, दूसरे का सरबरा मेरे एक दोस्त थे डॉक्टर मोहम्मद हुसैन, आजकल वो मेडिकल प्रैक्टिशनर हैं, जो इंडिया का मौसीकार है. अन्नू मलिक उसके वो फर्स्ट कजन है, पाकिस्तान में वो चले आए थे, उनकी फैमिली जो थी. तो यूं हमारा मुकाबला रहता. पहला मुकाबला मैंने जीता, तो सोहेल अख्तर साहब ने अपना पढ़ा हुआ सब रंग डाइजेस्ट मुझे दिया इनाम में. उसमें कहानी थी, इनका चल रही थी उन दिनों, किश्तवाड़. तो मैं वो पढ़ने के बाद मुझ पे दुनिया खुली कि हमारा जो फिक्शन है आलमी सतह का वो क्या है, हमारा जो बड़े सगीर का फिक्शन क्या है, पाकिस्तान का फिक्शन क्या है, क्योंकि उसमें जो तराजिम होते थे, मैंने उस वक्त तराजिम पढ़कर उर्दू के और वो सबरंग के छपे हुए, तो यूं मुझे शौक हुआ. तो फिर मैंने ये जो 1971, 72, 73 मैंने शुरू किया. एक महानामा होता था शम्मा कराची, वो हमारे घर में आता था, शम्मा लाहौर, शबाब लाहौर. ये वो पर्चे होते थे जो शम्मा दिल्ली की एक्सटेंशन थे, कि जिनमें बैक वक्त आपके पास फिल्मों के भी पेजेस होते थे और उसमें फिक्शन भी होता था, कहानियां भी होती थी. तो यूं मैं शम्मा कराची, शम्मा लाहौर और शबाब लाहौर में छपना शुरू हुआ. ये वो आगाज था. लेकिन 74 में मैंने अपनी कहानी भेजी सबरंग डाइजेस्ट में. लेकिन पता नहीं क्या हुआ कि वहां पर एक होते थे मेरे पसंदीदा मुसव्विर इकबाल मेहदी मरहूम, वो उसकी इलस्ट्रेशंस बनाया करते थे. तो वो जो मेरी कहानी थी उसके हवाले से मुझे इकबाल मेहदी साहब का एक खत मिला कोई 15 या 20 दिन के बाद. तो उन्होंने मुझे बताया कि वो मेरी कहानी ले गए हैं और उन्होंने ज्वाइन कर लिया था, इनको छोड़कर, शकील आदिलज़ादा साहब को छोड़कर, एक 2 डाइजेस्ट निकले थे, एक दोशीजा और एक था सूरज डाइजेस्ट. एक उसमें मिर्जा साहब थे, मैं उनका नाम पूरा भूल रहा हूँ, वो एक टूरिस्ट थे, उन्होंने आकर ये दोनों पर्चे निकाले. सूरज डाइजेस्ट तो साल 1.5 साल चला, खत्म हो गया. दोशीजा चलता रहा. यूं सूरज डाइजेस्ट में मेरी कहानियां, और जो मेरी पहली कहानी थी जो छपी थी गालबन फरवरी या मार्च 74 में, खून का रिश्ता,
तो उसकी इलस्ट्रेशंस इकबाल मेहदी साहब की बनी हुई थी। तो यूं फिर हर महीने मेरी कहानियां वहां छपने लगी। लेकिन 75 में जब रेडियो बावलपुर बना तो मेरी कहानियां रुक गई वहां पर, क्योंकि वहां पर सराकी ड्रामा लिखने वाला कोई नहीं था। मैं उन दोनों बीएससी कर रहा था वहां से। यूं मेरा जो था फिक्शन का एक पहलू, जो कहानी लिखने का, वो वहीं रुक गया और मैंने ड्रामा लिखना शुरू कर दिया। और हर हफ्ते मेरा ड्रामा होता था, जो फीचर्स वगैरह, और हर महीने में एक ड्रामा होता था जिसे आप लॉन्ग प्ले कह सकते हैं, 50 मिनट ड्यूरेशन का होता था। फिर वहां पर ऐसा भी हुआ कि 76 में मैं चला आया मुल्तान लॉ करने के लिए, तो रेडियो मुल्तान से वाबस्ता हुआ, तो वहां पर भी मेरे ड्रामे उर्दू के भी और सराइकी के भी वो चले। फिर 1980 में जब मैं वापस बावलपुर आया लॉ करने के बाद, तो ज़हूर नजर मरहूम जो थे वो रेडियो बावलपुर से वाबस्ता थे उर्दू ड्रामे लिखने के लिए। तो मैंने उनके साथ एक हफ्ते उनका ड्रामा चलता था उर्दू प्ले और एक मेरा। फिर जब टीवी की नशरियात शुरू हुई और वहां पर लाहौर टीवी हमें दिखाई देने लगा था 75 में, लेकिन वहां पर मैंने ड्रामा लिखना शुरू किया 1988 और 89 में। वहां पर मैंने पंजाबी ड्रामा भी लिखा, उर्दू भी लिखा और सराइकी भी लिखा। और 2002 में मुझे बेस्ट प्ले राइट का, जो लाहौर टीवी सेंटर का, वो पीटीवी अवार्ड भी मिला था। तो ये तो था मेरा सफर। लेकिन इस दौरान जब मैं जुडिशरी ज्वाइन कर चुका था, तो मैंने ड्रामा कमोबेश लिखना छोड़ दिया और फिर से मैं अफसाने की तरफ मुतवज्जे हुआ। यूं मेरी कहानियों के मजमूए आते गए। 1991 में जब मेरी पोस्टिंग मियावाली थी, तो मैं टूर पे जाता था ईसा खेल, उसका बहुत एक रिमोट जगह है, और वहां मेरे पास एक मुकदमा था, लाहौर जान वर्सेस ममरेज खान। वो मेरी कहानी है, एक लाहौर जान। अभी मेरी कहानियों का इंतखाब छपा था पिछले साल यहाँ सरीर पब्लिकेशन इस्लामाबाद से, लाहौर जान के नाम से। तो वो वहां थी। वहां रहते हुए मुन्नू भाई हमारे दोस्त थे मरहूम, तो उन्होंने मुझे बहुत फोर्स किया कि मैं नावल लिखूं। मैंने नावल लिखना भी शुरू किया। तो 50-60 सफ़े तो मैं वापस मेरी ट्रांसफर हो गई मुल्तान। यूं वो नावल रह गया। लेकिन अब मैं समझता हूं कि अच्छा हुआ वो नावल रह गया उस, कि चूंकि नावल जिस किस्म की मैच्योरिटी का तकाजा करता है, वो उस वक्त मुझ पे नहीं थी। कहानी लिखने के लिए तो मैं ठीक था, लेकिन नावल को आप देखें तो वो पूरी एक जिंदगी है, जिंदगी का घेर है। जबकि कहानी है, आप यहाँ से चले हैं, फर्ज करें आप शाहराह फैसल से चले हैं और आप चले गए हैं क्लिफ्टन तक, तो ये कहानी है। लेकिन जो पूरी जिंदगी आपने बिताई है, जिंदगी का घेर पूरा, वो नावल बन जाता है। तो उसको समेटने के लिए, बुनने के लिए, अब भी मैंने देखा कि नावल 50-60 सफ़े तक तो आपको अपने अंदर घुसने भी नहीं देता। वो हर कदम पर आपको झटके देता है, जाओ जाओ निकल जाओ यहाँ से, ये तुम्हारा काम नहीं, निकल जाओ। लेकिन 50-60 सफ़े के बाद जब आप उससे गुजर जाते हैं, फिर नावल अपना आप पे खोल देता है। फिर वो आपसे अपना आप लिखवाता है। वो जो किरदार आप बना चुके होते हैं वो बनते चले जाते हैं। इस दौरान जब मेरी डिफरेंट पोस्टिंग थी, तो मेरी मसरूफियत के हिसाब से मैं अपने काम करता था। तो दोस्तों ने मुझे कुछ लगा दिया 2000 के अवाइल में, तारीख की तरफ और तहकीक और तनकीद की तरफ लगा दिया। उन्होंने कहा कि कहानी मत लिखें। ये भी पता नहीं मेरे हक में बात थी या मेरे खिलाफ बात थी, कुछ साजिश थी कि मैं कहानी ना लिखूं। तो वहां पर अच्छा, इस दौरान मेरी दो कहानियों की किताब, एक कहानी की किताब को, एक ड्रामे किताब को, अकादमी अदबियात से दो इकट्ठे अवार्ड मिले थे 88 और 89 में ना। ड्रामे के मजमूए को और अफसानों के मजमूए को, दोनों सराइकी के थे। लेकिन इस दौरान ये हुआ कि मैंने फिर जो यहाँ की शायरी थी सराइकी इलाके की, उसकी 1000 साल तारीख को मैंने 9 आबादियाती खित्तों का नया मकालमा उसमें मैंने समोया देखा। खास तौर पर उस पे जो जो हमारा ये पोस्ट कॉलोनियल और कॉलोनियल पीरियड था, ये आपस में कैसे लिंक करते हैं और असरात क्या हैं। और उसमें मैंने ये कहा था, जो मेरा उसमें वन लाइनर था उस पूरी किताब का, जो 400-450 सफ़े की किताब है, तो मैंने उस वक्त कहा था कि ये जो हमारे आए थे हमारे हुक्मरान बाहर से, तो मैंने कहा अभी आपने
हमने देखा है, आपने हमारे बारे गजेटर छापे हैं, लेकिन आपने हमारी आंखों को नहीं देखा कि हम आपको किस निगाह से देखते हैं। और उसमें मेरा ये था कि हमने ये वो उन कौमों से कि जिनके हम गुलाम रहे कुछ झगड़ा नहीं करना। हमने मकालमे का वो दस्तरखान या हमने मुकालमे की चटाई बिछा दी है, आए बैठे, हमसे मकालमा करें, हम भी आप जैसे हैं और हो सकता है हम आपसे बेहतर हों अपनी तारीख, अपनी तहजीब और अपनी सकाफत के एतबार से। फिर मैंने ये किया कि हमारे जो कुछ शायर थे जिन्हें भुला दिया गया था, उनमें खुर्रम बावलपुरी थे जो ख्वाजा फरीद के कंटेम्परेरी थे, तरक्की पसंद थे। 1951 में उनकी डेथ हुई थी 100 साल की उम्र में, और उनका कलाम भी दस्तयाब नहीं था, जिंदगी के हालात दस्तयाब नहीं थे। वो पहले शायर थे जिन्होंने सराइकी में गजल को आगाज किया। वो उर्दू के, फारसी के, अरबी के और सराइकी के बहुत बड़े आलम थे, उनकी बड़ी निगाह थी। तो उन पर मैंने काम किया। फिर मैंने काफी कलाम पर मेरी किताब आई, उसमें 7-8 साल लगे, जो 1000 साल तारीख है, फिर काफी कहने की हमारे यहाँ। और काफी किस तरीके से मेरा थीसिस मैंने जो अपना डेवलप किया वो ये था कि काफी हमारे खित्ते की पैरेलल हिस्ट्री है, हमारी शौरी तारीख है। जो बादशाहों ने तारीख लिखवाई, दरबारी तारीख जो लिखी गई, उसके मुकाबले में जो काफी की सूरत में शायरी हमारे यहाँ ये है, वो सूफी की कुटिया से, किसी दरवेश की कुटिया से उठने वाला वो धुआं है जो लोगों के दुख दर्द को बयान करता है। यूं वो पैरेलल हिस्ट्री के तौर पर सामने आती है। इसको बड़ा एक्नॉलेज किया गया। फिर बहुत से मेरे मजामीन थे जो अदबी शख्सियात पर, उन पर किताबें आई। अखबारात में मैं कोई 18 साल तक कालम लिखता रहा, 11 साल तक नबुव्वत में। और फिर दूसरे अखबारात में जिसमें जंग था, खबरें था, नई बात, उसमें भी जहां जहां दोस्तों ने बुलाया वहां लिखा। लेकिन 2017 में मैं उकता गया ये कालम वालम लिखने पर। मैंने कहा मेरा तो जो बुनियाद थी वो तो फिक्शन था लिखना। तो फिर मैं नावल की तरफ आया। यूं अधूरे लोग, ये रियासत बावलपुर के लोगों की खोई हुई शनाख्त की कहानी है। उसके बाद अनवासी, उसमें भी हिस्ट्री इस तरीके से है कि जब 1872 में हमारे यहाँ रेलवे ट्रैक बिछाया जा रहा था कराची को लाहौर से जोड़ने के लिए, और मुल्तान के बावलपुर के हिस्से से वो ट्रैक बिछाया जाना था, उसकी कहानी है। फिर उसके बाद करकनाथ आया। करकनाथ हमारे आज की कहानी है। मैंने बतौर जज के या बतौर ब्यूरोक्रेट के, मैंने इस मुआशरे की वो तहें देखी हुई है कि जो मेरे ख्याल जहां तक एक आम आदमी की रसाई नहीं होती। इस वजह से उसकी बहुत सारी बातें नाकाबिले यकीन लगती हैं, लेकिन वो मेरी आंखों देखी हैं। मैंने बतौर एडिशनल सेशन जज, बतौर सेशन जज, जो पंजाब की तमाम जेलें हैं उनको विजिट किया हुआ है। हर महीने विजिट होता था, और फिर वहां के जो हालात जो हम तक पहुंचते थे। तो ये जो करकनाथ में 2 बच्चों की कहानी है, ये लाहौर में सीरियल किलिंग का पहला एक ट्रैक था। और ये उसमें 45 मर्डर हुए थे, और 19 मर्डर की ट्रायल मेरे पास थी जब मैं लाहौर में एडिशनल सेशन जज था। तो फिर मैंने वो तो वहां से लिया, लेकिन कहानी फिर अपनी बुनी आगे चलकर। उनका फैसला करने का मौका ना मिला, चूंकि फिर मैं एडिशनल सेक्रेटरी लॉ मिनिस्ट्री में चला गया था। लेकिन मैंने ये देखा कि हम बड़े खुश होते हैं गंदगी को छुपाने पर। अगर हम उस पे ना जैसे कवाली करते रहते हैं, गंदगी का ढेर है बदबू देता हुआ, उसके ऊपर हमने एक बड़ी खूबसूरत चादर बिछाई हुई है, खुशबू छिड़कते रहते हैं, और कहीं से वो कोना लीक होता है तो हम बड़े परेशान होते हैं कि ये बात क्या कहती है। फिर मेरा एक चौथा नावल आया था इस साल के आगाज में, मनतारा। मनतारा के नाम से, वो भी जो एक डीप स्टेट थ्योरी है उसकी एक्सटेंशन पर लिखी कि मुल्क कौन सा होता है और वहां हुकूमतें कौन बना रहा होता है। आपने देखा होगा कि जब डोनाल्ड ट्रंप जीते थे अमेरिका में, तो ये एक शोर उठा था कि उन्हें रशिया ने जितवाया है। अभी जो बाइडन जीते हैं तो कहा जाता है कि उन्हें चाइना ने जितवाया है, जबकि उनके आपस में जो हालात हैं।
تو میں نے اپنے ملک کے پس منظر میں وہ ایک کہانی ہے جو منتارا بھی ایک اردو میں بھی ہے اور سنسکرت میں بھی ہے، سراکی میں ہے۔ منتارا کہتے ہیں کہ ایسا شخص جسے تیرنا نہیں آتا لیکن اسے زوم ہے کہ وہ بہت بڑا اعلیٰ پائے کا تیراک ہے۔ تو یہ ایک ناول پہ بھی کام کر رہا ہوں۔ ہاں، میں نے جو ہمارا موجودہ پاکستان ہے اس کی ملتان کو اورینٹیشن بنا کر، بیس بنا کر میری کتاب تھی معاصر ملتان۔ اس کا جو پہلا حصہ تھا وہ قدیم دور سے شہاب الدین غوری کے حملے تک، وہ میں نے کیا۔ اب دوسرے حصے پر کام کر رہا ہوں میں جو 1857 تک ہوگا۔ یہ جنگ ملتان میں قسطوار چھپا، پھر خبریں میں چھپا قسطوار، اور پھر اسے ملتان انسٹیٹیوٹ آف پالیسی اینڈ ریسرچ نے 2 بار شائع کیا۔ ابھی یہ نیشنل بک فاؤنڈیشن والے سے 2 بار شائع کر چکے ہیں، اور جو کافی کلام پر کتاب ہے اسے بھی نیشنل بک فاؤنڈیشن والے شائع کر چکے ہیں۔ میں کل اس کے 2 ایڈیشن ملتان انسٹیٹیوٹ نے شائع کیے تھے، باقی وہ۔ تو یوں یہ کام جس طریقے سے میری زندگی ڈائیورجنٹ رہی ہے، اسی طرح میرا لکھنے کی کوئی ایک شعبہ نہیں رہا ڈائیورجنٹ۔ اس دوران ضیاءالحق کا جو پیریڈ تھا تو ہم لوگ کہانی نہیں لکھ سکتے تھے، کہانی نہیں کہہ پاتے تھے۔ تو پھر میں نے نظموں کا سہارا لیا، جو میری ایک ہی کتاب ہے، پہلی شب تیرے جانے کے بعد۔ اس کی مختصر نظمیں ہیں، کچھ نظمیں طویل بھی ہیں۔ تو یوں میں نے اپنے جذبات کو ایک اور روپ دیا شاعری کی صورت۔ تو ڈرامہ، افسانہ، ناول، تحقیق، تنقید، تاریخ، کالم نویسی، تو یہ سارے۔ اب آپ پوچھیں گے مجھ سے، یقیناً یہ سوال ہوگا، میں پہلے جواب دے دیتا ہوں کہ آپ یہ کام کیسے کر لیتے ہیں۔ ہاں، اس دوران ایک اور بھی میں نے کام کیا تھا، وہ تھا میں نے جب CSS کیا تھا تو مارکیٹ میں کوئی بھی ایسی کتاب یا کوئی ایسا میگزین دستیاب نہیں تھا جو دنیا کو دیکھے ایک پاکستانی کی نگاہ سے۔ ٹائمز اور نیوز ویک ہوتے تھے جو دنیا کو دیکھتے تھے امریکی کی نگاہ سے۔ تو میں نے اپنا ایک پرچہ نکالا، دی کمپیٹیٹر، یہ 1993 میں 92 میں نکالا تھا۔ اسے میں نے 2002 تک نکالا، میں تھک گیا تھا۔ اس کا ٹائٹل بھی بنا رہا تھا، کور سٹوری انگریزی میں تھا وہ، کیونکہ میں سروس میں تھا تو اپنا نام نہیں دے سکتا تھا۔ تو میری جو مسز تھی وہ اس کی ایڈیٹر تھی، باقی ساری ٹیم۔ تو اس طریقے سے اس کو میں نے چلایا۔ اگر وہ 14 سال میں وہ کام نہ کرتا تو 14 سال میں میرا اور بہت سا کام آ سکتا تھا۔ وہ 14 سال کا ایک ایسا پیریڈ ہے جس میں میرا کوئی لٹریری کام سامنے نہیں آ سکا تھا، ماں سوائے ڈرامہ سیریز وغیرہ کوئی آ گئی تو وہ لکھ لی۔ تو بس اس طریقے سے زندگی گزر رہی ہے۔ ابھی بھی میں سوتا ہوں رات کو 2 بجے سے صبح 6 بجے تک، اور پھر شام کو سوتا ہوں آدھا پونا گھنٹہ، اور پورا دن مجھے تو کبھی نیند کی حاجت نہیں ہوئی۔ جو میرا لکھنے پڑھنے کا عمل ہے نا، یہ رات 11 سے 2 تک ہوتا ہے، اور اگر کسی دن میں 2 لائنیں نہ بھی لکھ پاؤں، بہت کم ایسا ہوا ہے، تو اس دن کو میں نے اپنی زندگی کی گنتی میں شامل نہیں کیا۔ یہ میری بات طویل ہو گئی، میں آپ نے بہت جامع تعارف کروایا ہے اور اپنی زندگی کے تمام تر پہلوؤں کی عکاسی کی ہے، اپنی شخصیت کے، اپنی علمی ادبی حیثیت کے حوالے سے آپ نے تمام چیزیں جو ہیں وہ ایک جامع تعارف میں سمیٹ دی ہیں۔ لیکن اس کے باوجود ہمارے پاس کافی سوالات ہیں آپ کے لیے۔ میرے پاس تو سب سے اہم سوال جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ کے کئی ناول پڑھے، اور میں آپ کے ناولوں کے جو خواتین کے کردار ہیں ان سے بہت متاثر بھی ہوئی، اور ایک لمحے کو یہ بھی سوچنے پہ مجبور ہوئی کہ یہ کردار کیا ہمارے معاشرے میں موجود ہیں، چاہے وہ ظفیرہ احمد کا کردار ہو، چاہے وہ ماہین کا کردار ہو، چاہے وہ کلثوم کا کردار ہو، یا انواسی کی ہیروئن کا کردار ہو۔ تو کیا آپ ایسی خواتین سے براہ راست رابطے میں رہے، آپ نے حقیقی زندگی میں ان کو چلتے پھرتے اور اس طرح کے عمل کرتے ہوئے دیکھا، یا یہ آپ کے تخیل کی کار فرمائی تھی؟ میں نے ان سے ملتے جلتے کرداروں کو زندہ حالت میں
اور अमल की हालत में देखा हुआ है। क्योंकि मैंने आपसे अर्ज किया ना कि जिस नौयत का जॉब पे रहा हूं मैं, जब आप सुबह 8 बजे जज की कुर्सी पर बैठते हो और आपके पास सामने जो चीजें आती हैं वो इतनी हौलनाक होती हैं। कचहरी में रोज यौम हश्र बर्पा होता है। वहां बेटा बाप का नहीं, माँ बेटी की नहीं, कचहरी में बैठकर आपको रिश्तों से एतमाद भी खत्म हो जाता है, रिश्तों का एतबार भी खत्म हो जाता है। वो लोग जो लव मैरिज करके लड़की लड़का 2 महीने पहले शादी करके आते हैं, 2 महीने के बाद वो कोर्ट में खड़े होकर जब उनके दरमियान सेपरेशन का दावा होता है, इस किस्म के घिनौने इल्जाम लगा रहे होते हैं कि जिसकी इंतहा नहीं। ये जो जफीरा अहमद वाला मामला है, किरदार है, इससे भी बढ़कर किरदार मैंने देखे हुए हैं अपने जो हमारे मुकदमात की फाइलें हैं उनकी सूरत, उनमें, या जहां तक हमें एक्सेस मिल सकी वहां तक। अब जो जेल की दुनिया है, अच्छा, इसमें मैंने 2 चैप्टर कड़कनाथ से निकाले थे जो जेल के बारे में थे, और वरना वो सारी कहानी जेल की होकर रह जाती। जेल पर मैं कभी कुछ और लिखना चाहता हूं कि हमारे यहाँ जेलों का निजाम कैसे है। मैं आपको बताता हूं कि जो पंजाब की सबसे सख्त तरीन जेलें हैं ना, मसलन मियाँ वाली जेल से लेकर डेरा गाजी खां और ये अडियाला और प्लस आप जो साहिवाल जेल जो सबसे पुरानी है मोंटगोमरी वाली, इनके अटक जेल, ये इन तमाम के मैंने विजिट किए। जब मैं एडिशनल सेक्रेटरी ला था तो मैंने इन पर अपनी एक डिटेल रिपोर्ट भी बनाई थी सारे इस सिलसिले में, और मीटिंग्स भी होल्ड करता रहा था मैं। ये एक अजीब दुनिया है जो जेल के अंदर की दुनिया है ना। जो लोग जेल से होकर आते हैं वो उसका उशरशीर भी नहीं बताते बाहर आकर कि जो उनके साथ वहां होता है। मैंने उसका कुछ रिफ्लेक्ट करने की कोशिश की है। जो मैंने कड़कनाथ में लिखा है वो उसका 5% भी नहीं है जो एक्चुअली वहां होता है। किस किस्म के घिनौने कारोबार वहां अंदर होते हैं जेल के अंदर, कौन कौन उसका बेनिफिशियरी होता है। ये अगर एक जज लिखने पे आ जाए, हम पे तो बहुत सारी पाबंदियां होती हैं कि हम लिख नहीं पाते। अगर मैं अपने जुडिशियल सिस्टम के बारे में लिखना चाहूं तो उस पर पाबंदी है कि एक नोटिफिकेशन हुआ था हमारे यहाँ, हमारे हाई कोर्ट से, कि अगर हमने जुडिशियल सिस्टम या अपने जो सर्विस है जुडिशियल सर्विस उसके बारे में कभी कुछ लिखना होगा तो हम उसकी पहले परमिशन लेंगे, अपना स्क्रिप्ट वेट करवाएंगे। अदरवाइज चाहे हम सर्विस में हैं चाहे रिटायर हो चुके हैं तो फिर भी हमारे खिलाफ एक्शन लिया जा सकता है। तो बहुत सी बातें वो इस दिल में रह जाती हैं। हमने बहुत से बड़े बड़े नामों को उस हालत में देखा है कि उन पे थू थू करने को भी दिल नहीं चाहता, कि आदमी ये चाहता है कि जो स्पिट कर रहे हैं वो भी अपनी जय कर रहे हैं वहां पर। ये मुआशरा इतना घनौना है। और मैंने जो बतौर लॉ सेक्रेटरी के जो हमारे फाउंटेन हाउस हैं, जो पागल खाने हैं, वहां की दास्तानें देखें तो दिल दहलता है। कैसे 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 नौयत के मामलात होते हैं, हमारे घरों में क्या होता है। वुड यू बिलीव कि जब मैं एडिशनल सेक्रेटरी लॉ से मेरा ट्रांसफर हुआ एज एडिशनल सेशन जज सरगोदा, तो मैंने जो वहां पहला केस डिसाइड किया था, स्टेट वर्सेस अख्तर, वो केस में एविडेंस लिखी जा चुकी थी, जस्ट उसमें आर्गुमेंट सुन के फैसला करना था। तो उसमें जो इल्जाम था, एक बच्ची थी 7वीं जमात की, उसने अपने बाप के खिलाफ इल्जाम लगाया था कि उसका बाप उसे रेप करता रहा है, और वो 4 महीने तक रेप करता रहा था। मुझे यकीन नहीं आता था ये। तो फिर मैंने उसका इन्वेस्टिगेटिंग, क्योंकि उसमें एविडेंस हो चुकी थी, मैंने नहीं लिखी थी, मैंने उसके इन्वेस्टिगेटिंग अफसर को बुलाया, तफ्तीशी अफसर को बुलाया। उस बच्ची को, वो उसका कद कटहरे से ऊपर नहीं आता था, जो इतनी सही थी। तो वो रजारो कतार रो रही थी। और मैंने जब वो बंदे से पूछा, बारिश था वो जो अख्तर खड़ा हुआ था, तो मेरा सवाल था कि वाकई ये सब कुछ तुमने किया? तो उसने मेरी बात का यही जवाब दिया कि सही गरीब जो होए उसे, बस, इसके अलावा और कोई नहीं था। ये जो महरमात से जिनसी ताल्लुकात हैं, इनके तो इतने मेरे पास केस आते रहे कि अगर
वो रेफरेंसेस आ जाए सोसाइटी में, चूंकि हमारे जो लोग हैं, फर्ज करें हमारे जो लोग एजुकेशन से वाबस्ता है, उनका यहाँ से कोई ताल्लुक वास्ता नहीं होता कि हमारे यहाँ मुआशरे के जो एक गटर है, जेल है या जुडिशियल सिस्टम में जो क्रिमिनल केसेस हैं वहां क्या हो रहा है, प्रोसिक्यूटर्स जो है वहां प्रोसिक्यूशंस में क्या कुछ होता है। तो चूंकि हमें नो हाउ नहीं है, हमने ये सोच रखा है कि हमारा मुआशरा बड़ा आला और अरफा मुआशरा है, हमारी रिवायात है, हमारी फलाह है। लेकिन अगर हर शख्स की एक्सेस हो, मैं ये कहा करता हूं कि हर शख्स को कचहरी में 6 महीने गुजारने चाहिए, उस पर तमाम रिश्तों का, तमाम चीजों का, दुनियादारी का, उस पर भेदभाव खुल जाएगा। जी, मैं अगले सवालात के लिए दावत देती हूँ ज़हीर अब्बास को कि वो इंटरव्यू के कुछ सवालात जो हैं वो मोहम्मद हफीज खान साहब से पूछें। जी ज़हीर अब्बास साहब, माइक ऑन कर लीजिए अपना। जी, मैं तो बस इस हफीज साहब की गुफ्तगू का जो तसलसल है उसमें हो गया था। जितने सवालात थे मैं तो अपने सवालात ही भूल गए, लेकिन बहरहाल चलें, बड़ी अच्छी गुफ्तगू हो रही है। तो उसमें जैसे हफीज साहब ने भी जिक्र किया, आपने जिक्र किया कि आप फिक्शन की तरफ राग़िब हुए सबरंग की वजह से, आप इब्तदाई कहानियाँ जो पढ़ी सबरंग। तो मैं ये जानना चाह रहा था इब्तिदा में कि आप किन फिक्शन निगारों से, उर्दू के मकामी लिखने वालों से या और बैनुल अक़वामी किन लिखने वालों से मुतासिर हुए और क्या वजूहात थी? वो भी ज़हीर बयान। साहब, ऐसा है कि कहानी मैंने सबरंग डाइजेस्ट मिलने से पहले लिख ली थी, 71 में थी। लेकिन जब सबरंग डाइजेस्ट मुझे मिला तो मुझ पे आश्कार हुआ कि कहानियां यूं भी हो सकती हैं। जो मैंने उसमें जितने हमारे बाहर के हैं राइटर्स हैं, उसमें टास्टाई को मैंने बहुत ज्यादा अच्छा, जो आपने बात की ना मुतासिर होने की, मुतासिर मैं कभी नहीं हुआ। जो मुझे अच्छा लगा, जो मुझे अपनी कहानी लगी, तो उसमें मुझे जो अपने हैं लिखने वाले, उसमें मुझे वाहिदा तबस्सुम एक नाम है, उनका मैंने उतरन पढ़ा था कहीं सबरंग डाइजेस्ट में, शायद पहले उसमें था। तो बहुत ही उसने मुझे हॉन्ट किया, बहुत ही हॉन्ट किया। इसी तरह इस्मत चुगताई को मैंने उनका कोई एक आध पढ़ा था, लेकिन इतना मंटो को मैंने बहुत थोड़ा पढ़ा। मंटो को उनका सिर्फ मैंने एक पढ़ा था, ठंडा गोश्त गालबन था वो। अहमदुद्दीन कासमी साहब को मैंने पढ़ा, खास तौर पर उनका जो मजमुआ है कपास का फूल, उसके जो अफसाने थे, और वो हमारा जो CSS का उर्दू का निसाब था उसमें वो शामिल था, तो उसमें मैंने पढ़ा। लेकिन कहानियां जो मजा देती थी वो देती थी ये खास तौर पर वो, मैं अर्ज करूं कि हमारे जो थे इब्ने सफी, वो कहानियां बहुत मजा देती थी। इब्ने सफी को मैंने, हमारे यहाँ अहमदपुर में एक लाइब्रेरी होती थी, कमर लाइब्रेरी, और उसका किराया था 10 पैसे फी किताब का ना, एक दिन का, तो 24 घंटे का, आज लिए तो कल वो लौटानी होती थी। उस पे कोई भी वो नावल या कोई भी नहीं था जिस पर मेरा नाम ना लिखा हो। मैंने इनको पढ़ लिया था सारा, अपने जो है नसीम इजाजी साहब को, वो पढ़ लिया था। उससे पहले मैंने एक, जब 9वीं जमात में था तो छुट्टियां हुई, तो इत्तेफाक से मेरे हाथ एक नावल आ गया, हमारे कजन के पास था, उनका रजिया भट्ट का नावल आ गया। तो वो पढ़ने के बाद 2-3 रोज तो बुखार नहीं उतरा ज़हन से, पता नहीं वो अजीब सा उसमें था। तो हमारे यहाँ फिक्शन की जो सूरतें रही हैं उसपे से फिर मैंने एक कोशिश की कि मेरी अपनी राह, मैंने जो किरदार, अब देखें ना, जब मेरी उम्र 17 साल और कुछ महीने थी तो उस वक्त मेरी पहली कहानी, जैसे मैंने पहले कहा कि, और सूरज पहली कहानी नहीं थी, शम्मा शबाब, और उससे होते हुए सूरज डाइजेस्ट में मेरी वो तीसरी चौथी या पांचवी कहानी होगी जो सूरज में छपी थी। लेकिन उसमें मेरा डिक्शन था वो टोटली, जो मैं समझता हूँ कि मैंने अपनी राह,
निकालने की कोशिश की। इस वजह से वो लोगों को एक अलग से लिखता था। इसमें दूसरी बात ये थी कि जिस कहानी में औरत का मरकजी रोल होता था, मुझे वो कहानी बहुत हार्ट करती थी। मैंने अपने हाँ भी, मुझे बहुत, जब छोटा था ना, तो मुझे बड़ा एक होता था, मौका मिलता था जब 4-5 खवातीन बैठ के मिलकर गुफ्तगू कर रही होती थी। तो जिस तरीके से वो गुफ्तगू करती थी, वो गुफ्तगू मेरे ज़हन पे नक्श होती चली जाती थी। और फिर जो मेरी वालदा मरहुमा का एक असर था मेरी शख्सियत पे, मैंने जो पहली और आखिरी मोहब्बत की है अब तक, वो अपनी वालदा साहबा से की है। उनका एक अजीब सा वो था, वो मुझे मारती भी थी, फर्ज करें थप्पड़ मार दिया तो मैं उनकी गोदी में सर रख के रोता था, कहीं अलग होकर नहीं रोता था। और उनका मैं एहसानमंद हूं कि बाकी खवातीन से कतई हटकर हमारे वालिद साहब की वो जो तारीफ करती थी, वो मैं कहती थी कि हफीज, जो तुम्हारे अबू हैं, उन जैसा खूबसूरत और कोई नहीं है, उन जैसा जरी दलेर और कोई नहीं है, और उन जैसा मेहरबान कोई नहीं है। तो वालिद साहब का जो इमेज मेरी जात पे है, वो वालिद साहब की जात से कम, चूंकि वो तो वीकेंड पे आते थे घर पे और हमें उनके साथ ज्यादा रहने का मौका नहीं मिला, चूंकि हमें उन्होंने पढ़ाई के लिए स्टेशन कर दिया था एक जगह पे। तो मैंने देखा कि एक ऐसी औरत भी है, हालांकि जो मेरी वालदा थी, वो मेरे वालिद साहब की चौथी बीवी थी, लेकिन वो इतनी, चूंकि जो मेरी पहली वालदा थी वो मेरे वालिद साहब की कजन थी, तो उसमें से 2 बेटियां हुई, जो मेरी बड़ी बहन है और मेरी एक मुझसे छोटी है। तो उनके यहाँ औलाद नरीना नहीं हुई। फिर वालिद साहब ने 2 शादियां की, वो नहीं चली, तो वो जल्दी अरसे के बाद तलाक हो गई। तो फिर मेरी वालदा साहब आई, तो हम यके बाद दीगरे 3 बेटे पैदा हो गए और फिर छोटी बेटी पैदा हो गई। तो मेरी मेरी वालदा साहबा ने, जब मैं पैदा हुआ, मुझे उठाकर जो मेरी बड़ी अम्मी थी, मुझे उनकी गोद में दे दिया। और जो मेरी इब्तदाई परवरिश मेरी वो बड़ी अम्मी ने की, और उनकी बहुत जल्दी डेथ हो गई ड्यू टू ट्यूबरकुलोसिस। वो गर्मियां वो कोयटा में गुजारती थी। तो मेरी 8वीं जमात तक जो मेरी तालीम है, वो कहीं कोयटा में भी मैं पढ़ता रहा, वहां बरूरी रोड पर हमारा घर होता था। तो इस तरीके से जो औरत का एक खूबसूरत तरीन इमेज है, जहां जहां जिस जिस कहानी में जिस तरीके से आया, उसने भी मुझे हॉन्ट की। और जहां उसका बुरा तरीन इमेज आया, उसने भी मेरे सामने आया। मैंने कोर्ट में बैठकर ये देखा कि हम औरत को वो पुरस्कार होने पर मजबूर करते हैं, वो पुरस्कार है नहीं है। मेरी कहानी थी आटे की औरत, जो मैंने 18 साल से भी कम उम्र में लिखी थी। उसमें मैंने एक बात की थी कि औरत जितनी बाहर से सख्त दिखाई देती है, जैसे एक हार्ड नट होता है जो क्रैक नहीं हो सकता, तो लेकिन अंदर से वो उतनी नरम है। लेकिन शर्त है कि जो आदमी उसके सामने है, वो उसके अंदर को छू लेने की सलाहियत रखता हो। जो उसके अंदर को छू नहीं सकता, वो उसके कुर्ब का खां नहीं हो सकता। तो इसी पर जब मैं रेडियो प्रोड्यूसर बना था 1981 में, तो जो हमारा इंटरव्यू का फॉर्मेट था, ट्रेनिंग थी, उस पर मैंने इसी मौजू पर मैंने अपना इंटरव्यू रिकॉर्ड किया था। या महमूदा गाजिया खातून होती थी इस्लामाबाद में, वो बड़ी जैसे कहते हैं ना कि वो मर्दों से बड़ी झगड़े करने वाली इस किस्म खातून थी। और मैंने उनका 18 मिनट का इंटरव्यू किया, और मैंने उनसे ये मनवा लिया कि औरत जितनी भी बाहर से यूं लगे कि उसके खारदार है, अंदर उसका बड़ा जैसे गूंदा हुआ आटा होता है, नरम और मुलायम वो है। लेकिन उस तक रसाई वही कर सकता है जो उसकी कदर करता है, सलाहियत है जो वहां तक पहुंचने के लिए, फिर वो अपना आप वाक कर देती है उस पर। तो यूं रहा, ये मेरा मुतासिर होने या ना होने का आप खुद समझ लीजिए इसमें क्या है। जी जहीर, अगला सवाल अगर आप करना चाहते हैं तो आप कीजिए, वरना हमारे पास एजाज बाबू खान जो है वो भी मौजूद हैं। तो जी अच्छा सर, मुझे ये बताइएगा कि आप सराइकी में भी लिखते हैं, उर्दू में भी आप लिखते हैं, तो
کس زبان میں لکھتے ہوئے ایک تو خود آپ زیادہ کمفرٹ فیل کرتے ہیں اور رسپانس کس زبان کے پڑھنے والوں کی طرف سے آپ کو زیادہ ملتا ہے؟ اچھا ایسا رہا کہ میں نے لکھنا شروع کیا اردو میں جب میں نے چھوٹا تھا، چوتھویں جماعت میں تھا، جو میں نے نظمیں لکھی، 5ویں نظم میں لکھی. اور حریت میں میری ایک کہانی شائع ہوئی تھی چھوٹی سی، یہ غالباً جب 6ٹھی جماعت میں تھا. لالچی عورت سونا دیکھ کر خوش ہوگی، انہوں نے کیپشن لگایا تھا وہاں پہ. تو مجھے بڑی سہولت ہوتی تھی اردو میں لکھنے میں، چونکہ میں نے تعلیم اردو میں تھی. سرائکی ہمارے ہاں بولنے کی زبان تو تھی، لکھنے اور پڑھنے کی زبان نہیں تھی اس وقت کی بات کروں. لیکن جب 75 میں مجھے کہا گیا کہ آپ نے سرائکی ڈرامہ لکھنا ہے، تو پھر میں نے سرائکی ڈرامہ لکھا. پہلے میں اردو میں لکھ لیتا تھا، پھر اس کو سرائکی میں ٹرانسلیٹ کرتا تھا شروع میں. لیکن پھر میں اس میں فلوئنسی ہو گئی، لکھنے میں بھی فلو آ گیا اور سرائکی لکھنے لگا. جب میں لاہور میں تھا اور لاہور ٹی وی کے لیے مجھے پنجابی ڈرامہ لکھنا کہا گیا تو میں نے وہ بھی لکھا. زبانیں کبھی میرے لیے، جو اپنی زبانیں ہیں نا، یہ میرے لیے کبھی اس کا باعث نہیں بنی لکھنے کا. لیکن اردو میں جو لکھنا ہوتا ہے نا، اس پہ پتہ نہیں وہ الفاظ کہاں سے اترتے ہیں. لیکن جب میں سرائکی میں لکھتا ہوں تو لوگ کہتے ہیں کہ الفاظ کہاں سے آ جاتے ہیں. میرے پاس وہ الفاظ ہوتے ہیں کہ جو الفاظ اب نہیں بولے جاتے. جیسے کہتے ہیں نا کہ اردو کا لکھنؤ اور اردو کا دلی، یہ دو جگہ. دلی کی زبان بڑی سادہ اور لکھنؤ کی بڑی مرصع اور اس میں بہت سے 16 سنگار. اسی طرح ہمارے ہاں بھی کہا جاتا ہے کہ جو ملتان کی سرائکی ہے وہ بڑی سادہ سی ہے. لیکن جو سرائکی ریاست باولپور کی ہے، خاص طور پر چولستان کی جہاں قلعہ دراوڑ ہے، وہ زبان ہے احمد پور شرقیہ جہاں میں پیدا ہوں. وہ سرائکی کا لکھنؤ ہے، وہاں کی زبان اور کہیں نہیں بولی جاتی. اس میں ایک ایک لفظ کے کئی مترادف ہیں اور اب یوں اس کو استعمال کرتے چلے جاتے ہیں. اور خوش قسمتی سے میری تربیت وہاں ہوئی. اور جو اپنے پنجابی دوستوں کے ساتھ، اور میری نانی وہ جو تھی وہ پنجابی اسپیکنگ تھی، ان سے میں نے جو لفظ سیکھے وہ مجھے کام آئے پنجابی لکھتے ہوئے. اور انگریزی میں بھی مجھے سہولت رہی. انگریزی میں گو کہ میں نے فکشن نہیں لکھا. انگریزی میں میں نے وہ ایک نکالا تھا میگزین، منتھلی نکالا تھا، دی کمپیٹیٹر. اس کی جو پولیٹیکل کور سٹوریز یا یہ معاملات تھے انٹرنیشنل افیئرس کے، پاکستان افیئرس کے، وہ لکھتے ہوئے بھی مجھے اتنی سہولت رہی. لیکن میری بڑی خواہش تھی کہ میں اپنی کہانیوں کو یا اپنے اس کو جو میری تحقیق کتابیں تھیں میں خود ہی انہیں کنورٹ کرتا انگریزی میں. لیکن اگر میں انہیں کرنے بیٹھتا ہوں تو جو میرے اندر ایک بہت سا ایک مواد موجود ہے، لکھنے کا مٹیریل ہے، پھر اسے میں نہیں لکھ پاؤں گا. میری کہانیوں کے انگریزی تراجم ہوئے، میری کہانیوں کے سندھی میں تراجم ہوئے. سندھی دوستوں نے میرے جو سرائکی کہانیاں تھی اور اردو کہانیوں کا انتخاب انہوں نے سندھی میں ترجمہ کر کے وہ شائع کیا ہوا تھا آج سے کوئی 10-12 سال پہلے. اور وہ سوچ رو وہاں کا ایک پرچہ ہوتا تھا، وہاں پہ چھپتی رہی تھی. انہوں نے پرویز صاحب تھے، انہوں نے کیے. میں نے بھی تراجم کیے تھے انگریزی سے. کچھ سری لنکن شارٹ سٹوریز تھیں اکادمی ادبیات کے لیے، جو ان کا ہوتا ہے ادبیات کے لیے. لیکن تراجم کی طرف میں زیادہ نہیں گیا، کیونکہ جو آدمی تبازاد لکھ پا رہا اور لکھنا چاہ رہا ہو، اس کے اندر بہت ہی وہ ابال ہو، ترجمہ کرتے ہوئے پھر وہ ضائع ہو جاتا ہے میرے نزدیک. جی اگلے سوال کے لیے میں اعجاز بابو خان سے کہوں گی کہ وہ مزید سوالات جو ہیں وہ آگے بڑھائیں. بہت شکریہ میڈم. میں حفیظ خان صاحب سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ انہوں نے اپنی ادبی زندگی کا آغاز شاعری سے کیا، اس کے بعد تحقیق، تنقید، تاریخ، افسانے، ڈرامے اور سرائکی زبان میں بھی افسانے اور ڈرامے لکھے، کہانیاں بھی لکھی، اور پھر آخر میں ناول انہوں نے لکھی. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا وقت کے ساتھ ساتھ آپ نے اصناف میں جو طبع آزمائی کی ہے تو ناول اس کا نقطۂ عروج ہے، یا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ابھی عشق کے امتحان اور بھی ہیں؟ اچھا، یہ جو عشق ہے یہ تو خدا کرے ہوتے رہے. یہ جو آپ کا ہے نا جنون جو ہے، عشق جو ہے،
हो सकता है कि कोई ऐसा फॉर्मेट अल्लाह ताला मुझे जिंदगी दे, उसमें से कोई ऐसा फॉर्मेट सामने आ जाए, लेकिन अभी तक जो मुझे लुत्फ आता है नावल लिखने में, वो या मुझे जो लुत्फ आता था ना कि मैं जो जजमेंट, हमारे यहाँ मर्डर केस की जजमेंट 100 सफ़े से कम नहीं होती, ज्यादा होती है, कि जब आप उसको जजमेंट को लिख रहे होते हैं और उसमें सारा चीज बना रहे हो, देख रहे होते हैं, नावल में किरदार आपके साथ होते हैं। ये जो नावल अनवासी है, अनवासी में जो किरदार है संगरी का, लड़की का किरदार, वो बिल्कुल ही, जब मैंने इसे सोचा था कि मैं लिखूंगा तो बड़ा माइनर सा रोल था, उसने कहीं इधर उधर हो जाना था, लेकिन वो लड़की इतनी तवन्नाई से सामने आई, जैसे ही उसने वो चांटा रसीद किया अपने उसको, उसके बाद वो इतनी तवन्नाई से सामने आई कि वो काबू में नहीं आई और वो बढ़ती चली गई और पूरे नावल पर हावी हो गई। तो मुझसे दोस्त पूछते हैं कि यार आप कौन सा ये आप स्केच बना के बैठे, अब नावल अभी मैंने शुरू किया हुआ है नावल, तो वो कहते हैं आपने क्या लिखना है? मैंने कहा मुझे खुद भी पता नहीं मैंने क्या लिखना है। अच्छा, मैं हैरान होता हूँ कि वो लोग जो पहले उसका सिनॉप्सिस बनाते हैं, जैसे भी मजमून हो, या हमारे यहाँ शायरी भी ऐसे की जाती है कि पहले सारे काफिये ढूंढकर एक तरफ कर लिए जाते हैं और फिर काफिये से उस पर शायरी की जाती है, जो आप पे शेर उतरता है। आप मुनीर न्याजी को देखें ना, मुनीर न्याजी की शायरी में आपको हजार हा नकास नजर आएंगे अगर आप उनके जाएं, उनके आप अरूज पर जाएं, लेकिन वो तो ख्याल का शायर है, तसव्वुर का शायर। वो जो ख्याल मुनीर न्याजी पे उतरता है वो दूसरों शायरों में नहीं उतर सकता, जो इस सोचते रहते हैं कि इस काफी को कैसे इस्तेमाल करें, इस काफी को कैसे बांधें। वो तो मैं उस पे नहीं लिख पाता। दूसरा ये है कि जो नावल, मैं समझता हूं कि जिस स्टेज पे आकर मैंने नावल लिखा, मुझे इसी स्टेज पर ही लिखना चाहिए था आकर। और जहां तक वो पहले बात हो रही थी पजीराई की कि मैंने कौन सी जुबान, उसका मैं जवाब देना भूल गया था पहले, तो उसका जो था फेजर साहब का, उसमें ये था कि मैं खुशकिस्मत हूँ इस लिहाज से कि मेरे पहली तहरीर से ही मुझे पजीराई मिलना शुरू हो गई थी, चाहे वो सराइकी की थी, उर्दू की थी। पंजाबी दोस्तों ने भी बहुत मोहब्बत की, और जहां जहां भी मैं, जिस मेरा वो जो मैगजीन था इंग्लिश का, करंट अफेयर्स का, द कॉम्पिटिटर, उसने भी बहुत ज्यादा मेरी तवक्को से बढ़कर दी। और ये मैं समझता हूँ कि मुझ पे जो ऊपर वाले का बहुत करम रहा है इस सिलसिले में, कि उसने मेरे हरफों को कहीं तासीर बख्श दी, अता कर दी। बहुत शुक्रिया सर। अगला सवाल मेरा ये है कि आपने अपनी अक्सर लोगों को, मुझ समेत, ये शिकायत रहती है कि वक्त बहुत तेजी से गुजरा है या वक्त की कमी का रोना रोते हैं। आपने अपनी बेपनाह मसरूफियात के बावजूद, पेशा वाराना जिंदगी की मसरूफियात के बावजूद, शायरी, तहकीक, तनकीद, नावल, अफसाना, ड्रामा और दीगर चीज़ों को भी वक्त दिया। तो इसके हवाले से भी आप ज़रा अपने तजर्बात और मुशाहिदात हमारे साथ शेयर करें, और इसके साथ साथ ताकि हमें भी अंदाज़ा हो कि हम किस तरह अपने आप को इस तरह की चीज़ों में एडजस्ट कर सकें। मेरे नाना एक अपने एक बात कहा करते थे, आपने बहुत अच्छा मुझे याद दिलाया। वो मेरे नाना बैठे होते थे, वो एक जो प्रोवर्ब थी वो बहुत यूज करते थे। वो कहते थे कि थके दा कोई सक्का नहीं, ही गालो मैं थका नहीं, सराइकी में कहते थे कि जो आदमी थक जाता है उसका कोई दोस्त नहीं होता, इसलिए मैं थकावट का शिकार नहीं हुआ। थके दा कोई सक्का नहीं, ही गालो मैं थका नहीं। तो मैंने ये बात कहीं मेरी जिंदगी का हिस्सा बन गई। वो जो एफएससी मैंने प्री मेडिकल की थी, मैंने आपको ये भी नहीं बताया कि मैं एमबीबीएस भी कुछ देर पढ़ता रहा हूँ एफएससी करने के बाद ना, कुछ महीने। तो फिर वो छोड़ना पड़ा मुझे, और फिर मैं लॉ की तरफ आ गया, जो मेरा मोस्ट हेटेड सब्जेक्ट था। तो मेरा ये रहा है कि काम करने का कोई बहाना नहीं है, काम ना करने के 100 बहाने होते हैं। आदमी जवाब ढूंढता है ना करने के। अगर मैंने कुछ करना है ना, तो मैंने कर गुजरना है। अब ये जो तीनों नावल, बल्कि 4 नावल, ये मनतारा और सारे ये इस तरह लिखे गए हैं कि मैं लैपटॉप मेरे साथ होता है,
मैं सफर कर रहा हूँ तो एक पैराग्राफ लिख रहा हूँ, मैं ऑफिस में बैठा हूँ काम कर रहा हूँ। क्योंकि रिटायरमेंट के फौरन बाद ही मुझे इधर एक कॉन्ट्रैक्ट ऑफर हो गया था। सुप्रीम कोर्ट का एक ज़ेली इदारा है फेडरल जुडिशल एकेडमी, जहाँ जजेस की तरबियत होती, ट्रेनिंग होती है, पूरे पाकिस्तान से जा जाते हैं। तो मैं वहाँ डायरेक्टर लग गया था 4 साल के लिए। तो अगर मुझे वहाँ आते जाते हुए भी इस्लामाबाद में, तो मेरे घर से लेकर दफ्तर तक मुझे वो टाइम मिला, 2 लाइनें में मैंने वो लिख ली। और बाज़ औक़ात तो ऐसी चीज होती थी कि ज़हन में आती थी कि मैंने ये उसमें नावल में लिखनी है, तो ज़हन से उतर जाती थी। जो मैंने एक पैराग्राफ लिख कर छोड़ा है लैपटॉप पे अपने फाइल में, तो जब मैंने उसे शुरू किया तो जो मैंने पहले सोचा हुआ तो वो कहीं रह जाता है और कोई नई बात शुरू हो जाती है उसमें, और वो जो बात सोची हुई थी वो कहीं इधर उधर हो जाती है। तो इसलिए मैं कभी रात 11 से 2 तक मेरे अपने टाइम होते हैं, फिर वो मैं मौज करता हूँ, वो बैठता हूँ, लिखता हूँ और मजा करता हूँ, एंजॉय करता हूँ अपने आप को। जी, अगले सवाल के लिए मैं दावत दूंगी हिरा शब्बीर को कि वो इंटरव्यू का सिलसिला आगे बढ़ाएं। शुक्रिया मैडम। सर, मैं आपसे ये सवाल पूछना चाहूँगी कि आपने अपनी गुफ्तगू के दौरान कहा कि आपने नज़्मों से स्टार्ट किया, आगाज़ किया, नज़में लिखना शुरू की। तो क्या अब भी ये सिलसिला जारी है और इसके साथ-साथ शायरी की दीगर इसनाफ पर भी आपने कभी आज़माई की, कुछ और भी लिखा? और इल्म उरूज़ पर आप कितनी दस्तरस? मैंने जो उसे मैं आगाज इसलिए कहता भी हूँ, नहीं भी कहता, कि मैं चौथी जमात में था। 2 मिली नगमे मुझे जो राइस अमरोही मरहूम के वो जो मिली नगमे 65 की वार में बहुत मशहूर हुए थे ना, खित्ता लाहौर तेरे जानिसारों को सलाम और इस किस्म के दूसरे उनके, तो उनका एक तो मैं वो उनका जो फिकाइया होता था कथा वो पढ़ा करता था, जंग हमारे घर में आता था, और फिर उनके मज़ामीन। और तो उन दिनों मैं उनसे वो खासा जिसे कहें कि मिली नगमों से, तो मैंने कोई 7-8 शेर की वो तुकबंदी की थी जिसे आप कहें। उसके बाद दरमियान में तो फिर कोई वो नहीं आया। तो जब मैं फिर 85 से 88 तक, जब ज़ियाउल्लाह का पीरियड था और बहुत ही हब्स थी, बहुत हब्स थी, तो वहां मैंने नज़में लिखी। और वो लेकिन जो फन अरूज है, अरूज पर मैं ये नहीं कहता कि मेरी उस पर कुछ दस्तरस है या उस पर मैं बहुत हावी हूँ। लेकिन ये है कि शेर जो मेरे सामने आता है उसको परख लेता हूँ, तो बहुत से हमारे जो दोस्त बड़े नामवर शोरा हैं, वो अपना कलाम लिखने के बाद वो मेहरबानी करते हैं कि मुझे एक निगाह दिखाते हैं और कोशिश करते हैं कि मुझसे उसका इंतखाब करवा लें खड़ा सा। बाकी पैरोडीज बनाने के बड़े माहिर होते हैं हम लोग। तो इसके अलावा ज्यादा मैं शायरी नहीं करता, क्योंकि जो डेस्क वर्क से बैठकर लिखने में आपको जो मजा है, लुत्फ है, वो चलते फिरते हुए शायरी करने में नहीं। उस तरीके से कि आप देखिए ना कि अगर 100 लोग हैं, 100 में से आपको 2 या 3 लोग मिलेंगे जो बैठकर काम कर रहे हैं, बाकी तमाम हमारे यहाँ शायरी होती है और बस शायरी ही होती है। इसलिए जब मैंने ये समझा कि मैं अफसाना, कहानी या नावल लिखकर अपना कैथारसिस नहीं कर सकता, तो फिर मैंने वो नज़में कही। जी हीरा, अगला सवाल। आपकी आवाज ठीक नहीं आ रही हीरा। सर, मेरा अगला सवाल ये है कि आपने अभी इस बात का भी तज़किरा किया कि जेलों में बहुत से ऐसे मामलात होते हैं, ऐसे बहुत से घिनौने कारोबार होते हैं जो किसी तरह भी मुनासिब नहीं होते। वो आप चूंकि जुडिशनरी से भी वाबस्ता रहे हैं, तो ये सब लोगों के इल्म में ये बात होती है कि तो क्या इसकी रोकथाम के लिए कोई इक़दाम नहीं किए जाते, इस पर कोई बात नहीं की जाती, इसको रोका जा सके? इंसान की एक सरिश्त है, आप उसकी सरिश्त को नहीं बदल सकते, और कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो माहौल के जरिए उसमें अंदर आती हैं। मैंने ऐसे ऐसे अच्छे नौजवानों को कि जिनकी तबा में, फितरत में तशद्दुद बिल्कुल नहीं था, लेकिन जब वो किसी ऐसे महकमे में गए हैं, किसी ऐसी जॉब में गए हैं जहां तशद्दुद की जुबान के अलावा और कोई जुबान बोली नहीं जाती, वहां जाकर वो कहते हैं कि नमक के कान में सब कुछ नमक हो जाता है।
और दूसरा जेल की जो चार दीवारी है ना, इस पे चाहे आप जज जाएं, रेड करें, कुछ करें, अचानक से जाएं, तो वो के लिए ये सिलसिला शुरू हुआ था अचानक छापे मारने का, लेकिन फिर खुद ही वो तो रुक गया इसलिए कि जेल वालों ने कह दिया था कि अगर जज साहबान इस तरह अचानक से आएंगे तो गारंटी नहीं दी जा सकती कि उनको कोई लोग नुकसान ना पहुंचा दे। सियालकोट जेल में एक वाकया हुआ था कि हमारे 4 जज वो शहीद हो गए थे, और वहां जो मुजरिम थे, क्योंकि जिन लोगों का जज ट्रायल कर रहे होते हैं वो लोग वहां कैद होते हैं, बंद होते हैं, नंबर 1। नंबर 2, वहां पर जेल के जो बड़े अफसर हैं, फर्ज करें वो ईमानदार भी हैं, अच्छे लोग भी हैं, वो तो दूर बैठे हुए हैं। जब जेल लाख हो जाती है तो जो सुपरटेंडेंट जेल होता है वो उसके रहमो करम पर होते हैं सारे के सारे, और सुपरटेंडेंट जेल भी फिर अपने घर में होता है, जो उसके छोटे हवारी, छोटे उसके मुलाजिम होते हैं, और जो एक एक बैरक पर जो तैनात होते हैं, फिर उनका किरदार आ जाता है कि कैसे कैसे, मैं आपको बता नहीं सकता कि किस किस्म के मामलात होते हैं। मैं साहिवाल मेरी पोस्टिंग हुई बतौर डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज गालबन 2013 में, मई में। तो मैं वहां के 2-4 दिन के बाद विजिट के लिए मैंने जाना था अपना चेक करने के लिए। मैंने 11 बजे जाना था और मुझे देर हो गई, मैं वहां 1 बजे गया। जब मैं 1 बजे गया तो सुपरटेंडेंट जेल ने बाहर सलामी दी, सलामी के बाद मैं अंदर गया। अंदर देखा तो मैंने उनका वो जाना था चेक करने के लिए बैरक्स और किचन और उनकी हॉस्पिटल्स जो अंदर बनी होती है, डिस्पेंसरी। मैंने देखा तो एक तवील, आप कह लें कि 1.5 फरलांग लंबी एक राहदारी बनी हुई थी। शदीद गर्मी थी, धूप थी, और उसके दोनों तरफ कैदी खड़े हुए थे, और उनके हाथों में फूलों की थालियां थी। और मैं जो गुजरा तो उन्होंने मुझ पर फूल फेंके, तो मैंने उनके चेहरे की तरफ देखा तो पसीने से शराबूर, उसमें हर उम्र के थे, बूढ़े भी थे, जवान भी थे। तो मैं तो वहीं रुक गया। तो मैंने सुपरटेंडेंट जेल से कहा कि इन्हें अभी फारिग करो, मैं जेल का विजिट नहीं करूंगा, मैं तुम्हारे खिलाफ लिखूंगा, और आइंदा अगर इस किस्म का कोई मामला हुआ कि मेरे इस्तकबाल के लिए इतनी धूप और गर्मी में आपने कैदियों को खड़ा किया, तो फिर ये मेरे लिए बात नाकाबिले बर्दाश्त होगी। तो इस तरीके से ये बहुत सारे मामलात होते हैं कि जब मसलन एक आपका एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है कोई, तो आपके जो हेड हैं उनका जो मिजाज है वो आपके पूरे इदारे पर, हर क्लास पर, क्लास रूम पर, उसकी टीचिंग और टॉट्स पर वो उसी तरह से अंदाज होता है। अगर एक खुशगवार और अच्छे मिजाज की और लर्नेड और पढ़े लिखे लोगों पर आते हैं तो उस तरह होते हैं। लेकिन हमारे यहाँ जो खुशामद का एक एलिमेंट है वो हर चीज को बर्बाद कर देता है। और फिर करप्शन, कि आपने कैसे एक्सटॉर्ट करनी है, रकम कैसे निकालनी है दूसरे की जेब से। लोग तो लाशों को नहीं बख्शते। हमारे यहाँ सब अच्छा नहीं होता, न सब अच्छा है, हम उस पर पर्दा डाले रहते हैं। और वो घर में जो पर्दा डालने का सिलसिला है, मैं एफर्ट टू से इवन सबसे पहले माँ से शुरू होता है। माँ अपने हस्बैंड से वो तमाम बातें छुपाती है जो घर में होती है, जो बच्चों के माबैन होती हैं, बच्चों में होती हैं। बेटी का अगर कहीं कोई मसला है, बेटे का कहीं कोई मसला है, तो माँ पर्दा डालती है कि बाप कहीं मारे पीटे ना और हालत घर के खराब ना हो। तो ये जो अवामिल हैं, ये हमारे मुआशरे को बर्बाद की चले जा रहे हैं कि हम कोई बात कह नहीं पाते। जब तक हमारे बोलने पर इसी तरह से पाबंदियां लगी रहेंगी और हम वो ताली बजाते रहेंगे, कवाली करते रहेंगे कि सब अच्छा है, सब अच्छा है, तो कुछ भी अच्छा नहीं होगा। जी जनाब मोहम्मद हफीज खान साहब, आज हमने आपको दावत दी, अपने इस प्रोग्राम में शिरकत की और आप ऑनलाइन आए और आपने हमें अपनी ज़िंदगी के ऐसे पहलुओं से मुतारिफ करवाया और हमारी समाजी ज़िंदगी के ऐसे पहलुओं से मुतारिफ करवाया कि जिनसे हम इस हद तक वाकफियत नहीं रखते थे। यकीनन जो कानून दां की हैसियत से आपने जो कुछ देखा, जिन तजुर्बात से गुजरे और जो कुछ आप यहाँ ज़ेरे बहस लाए, उसमें से बहुत सारी चीज़ें हमारे लिए नई है। और ये हकीकत है कि हमारा ताल्लुक तालीम से है
اور ہم ان اداروں میں ہونے والے وہ تمام معاملات سے واقف نہیں ہیں کہ جن سے آپ واقف ہیں۔ آج کی یہ گفتگو بہت اچھی رہی، سوالات بہت سارے ہیں اور اتنے سارے سوالات، لیکن اس کے باوجود آپ نے اپنے مکمل تعارف میں اتنے بھرپور طریقے سے ہمیں ان سوالات کے جوابات دے دیے کہ جو ہم آپ سے پوچھنا چاہتے تھے۔ تو آج آپ ہماری خواہش میں آن لائن آئے، تو اس کے لیے میں آپ کی بے انتہا مشکور ہوں کہ آپ نے اپنے قیمتی وقت میں سے ہمارے لیے وقت نکالا، اور میں آپ کا بہت اس حوالے سے شکریہ ادا کرتی ہوں، اور اپنے ان شاگردوں کا بھی شکریہ ادا کرتی ہوں، جس میں ظہیر عباس صاحب، اعجاز بابو خان اور ہیرا شبیر، یہ سب جو ہیں ہمارے ساتھ آن لائن آئے اور انہوں نے آپ سے سوالات کیے۔ اس پروگرام کا ایک مقصد یہ بھی ہے کہ ہمارے جو شاگرد ہیں، ہمارے جو طلبہ ہیں، وہ علم و ادب کی اہم شخصیات سے واقف ہو سکیں۔ تو اب مجھے یقین ہے کہ یہ آپ کی کئی کتابوں کا مطالعہ ضرور کریں گے، کیونکہ ان پہ آپ کی گفتگو نے ایک بڑا گہرا اثر مرتب کیا ہے۔ تو میں اب آپ سے اجازت چاہتی ہوں، انشاءاللہ اگلے کسی پروگرام میں ہم یقیناً آپ کو پھر مدعو کریں گے اور آپ سے مزید گفتگو کرنا چاہیں گے۔ اگر آپ آخر میں کوئی پیغام دینا چاہتے ہیں تو خوش آمدید۔ میں بہت ممنون ہوں آپ کا، اور خاص طور پر جو آپ کے اسکالرز ہیں جو آج 3 اپنے موجود رہے، میں ان کے سوالات سے بہت متاثر ہوا، اور ان کی جو ایک کہہ لیں فکری گہرائی وہ ریفلیکٹ کر رہی ہے کہ وہ کون سے شعبے میں پڑھ رہے ہیں، کون سے انسٹیٹیوٹ میں پڑھ رہے ہیں، اور ان کو موقع ملا ہے کہ اس طرح باتوں کو دیکھنے کا، اسیس کرنے کا۔ اور آپ کی سربراہی میں اور آپ یہاں موجود جس طریقے سے آپ نے مجھ سے گفتگو کی، یقیناً یہ میرے لیے ایک اعزاز ہے۔ باقی پیغام میں کبھی نہیں دیا کرتا ماں سوائے اس کے کہ تھکنا نہیں، زندگی میں کام کرتے رہنا ہے، بڑھتے رہنا ہے آگے۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔